بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی ایلینک کی ملاقات۔ معیشت، زراعت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملک آئندہ سال سفارتی تعلقات کی 30ویں سالگرہ منائیں گے۔ وزیر اعظم کی صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ بیلاروس کے وزیر خارجہ کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بھی آگاہ کیا۔ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات۔ مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزارت سے متعلق امور کے بارے میں وزیر اعظم کو بریف کیا۔ بجٹ میں کاروباری برادری کی تجاویز کو اہمیت دیں گے۔ ماضی میں بھی تاجروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر مشکلات کا مقابلہ کیا اور ملک کو مشکل صورتحال سے نکالا۔ اقتصادی چیلنجز کے باوجود کاروبار دوست ماحول کے فروغ اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی سیالکوٹ چیمبر کے وفد سے گفتگو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کی سرگرمیوں اور دیگر شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کا صحت کے شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا خیر مقدم۔ مبینہ آڈیو لیک سے متعلق انکوائری کمیشن کی تشکیل کا معاملہ۔ سپریم کورٹ دائر درخواستوں اور بینچ پر اعتراضات کی آئندہ ہفتے سماعت کرے گی۔ انکوائری کمیشن نے بطور فریق مقدمے میں جواب جمع کرا دیا۔ بینچ کی تشکیل پر اعتراض۔ انکوائری کمیشن نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے متعلق اپنا موقف پہلے اجلاس میں واضح کر دیا۔ جواب میں موقف۔ القادر ٹرسٹ کیس انتہائی سادہ ہے لیکن اسے پیچیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانوی ایجنسی اور پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی۔ برطانیہ سے ملنے والی رقم بحریہ ٹاؤن کو دینے کے عوض القادر ٹرسٹ بنایا گیا۔ معاون خصوصی عرفان قادر۔ عمران خان کی یو ٹرن لینے کی بھیانک تاریخ ہے۔ امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے والا اب امریکہ سے ہی مدد مانگ رہا ہے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث بلوائیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ بجلی کے بلوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیر توانائی خرم دستگیر۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی ملاقات۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کے جمہوری، سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف سر پیٹرک نکولس کی راولپنڈی میں ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور قربانیوں کی تعریف۔ خطے میں قیام امن اور استحکام کے حوالے سے کاوشوں کو سراہا۔ جی ایچ کیو آمد پر معزز مہمان کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ جنرل سر پیٹرک نکولس کی یادگار شہداء پر بھی حاضری۔ پاک فوج محفوظ اور مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ کچھ لوگ ملک کی سالمیت کو اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ پاکستان اور پاک فوج امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے۔ سربراہ مسلم لیگ ق چودھری شجاعت حسین کی وفود سے گفتگو۔ میں اپنے بابا سے سب کہوں گی، یہ نفرتوں میں تمہاری شدت، نہ دیکھی تم نے وطن کی حرمت، کہاں گئی وہ تمہاری غیرت، تمہارے شعلوں میں میں جلوں گی، میں اپنے بابا سے سب کہوں گی۔ شہدائے پاک فوج کے لواحقین بھی شرپسندوں کی جانب سے 9 مئی کو فوجی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچانے پر افسردہ۔ سوشل میڈیا پر وائرل نظم نے عوام کو اشک بار کر دیا۔
नज़्म में शहीद सिपाही की बेटी ने 9 मई को शहदा की बेहुरमती पर अपने शहीद बाबा से शिकायत की है। पाकिस्तान के अवाम की 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत, 80% पाकिस्तानियों का शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। पुरतशद्दुद वाक़यात कौमी और फौजी बका के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करार। अफसोस को एक कौमी पुल की 9 मई के वाक़यात पर अवामी राय। पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी, मजीद रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। बहावल नगर से साबिक रुकन असम्बली सैयद मोहम्मद असगर शाह ने भी इमरान खान से राहें जुदा कर ली। डेरा इस्माइल खान से मखदूम ज़ादा अली रजा, जहांज़ेब अकबर खान और दीगर रहनुमाओं का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों से कोई रियायत न बरतने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। स्पेनवाम में पोलियो टीम पर शिद्दत पसंदों का हमला नाकाम बना दिया गया, भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में सिपाही साकिबुर रहमान शहीद हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम इंतहा को छूने लगे, बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। जिला पूंछ में पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान फायरिंग से एक शहरी जख्मी। श्रीनगर में बीजेपी रहनुमा ने शहरियों को बिला जवाज ज़दोकोब किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए, हिंदू इंतहा पसंदों के हमले में 80 ईसाई हलाक, 250 से जायद जख्मी, 121 गिरजाघर और 100 से जायद घर नजरे आतिश। रूस का डोनेट्स्क के मुहाज पर मजीद यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे का दावा, रूसी फौज अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में मसरूफ। फौज की जरूरियात पूरी करने के लिए रूस ने राइफल गोलियों और तोप के गोलों की बरामद रोक दी। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी। आइंदा 24 घंटे के दौरान बलोचिस्तान, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पीसीबी हुक्काम के हमरा लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में से है, चेयरमैन आईसीसी। ओमान में जूनियर हॉकी एशिया कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान और मलेशिया मध्य मुकाबिल, मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 3 मैच जीते, 1 मैच बराबर रहा, जबकि मलेशिया ने अपने 4 मैचों में कामयाबी हासिल की। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। क्या देख रहे हो जानी? देख रहा हूँ कि नफरत की आग ने क्या कुछ जला डाला। इग्नोर कर जानी, एहतजाज में तो ऐसा होता ही है। कम ऑन यार, क्या बात कर रहे हो? कहाँ लोग मरीजों को निकाल कर एम्बुलेंस चलाते हैं, अपने शोधा की यादगारों को कौन पत्थर मारता है? हमारे मुहाफिजों, हमारे स्कूलों और जीएचक्यू पर तो दहशतगर्द हमलावर थे। जिना हाउस तक को भी नहीं बख्शा इन्होंने, और तू कहता है कि इग्नोर करो। जब क़यादत को दीवार से लगाया जाएगा तो रिएक्शन तो आएगा ना। जो खुदगर्ज हो वो क़यादत नहीं होती। भुट्टो अगर खुदगर्ज होता तो कभी एटमी प्रोग्राम की बुनियाद न रखता। नवाज शरीफ अगर खुदगर्ज होता तो कभी एटमी तजर्बात न करता। और आज इन्होंने क्या किया? वो चाकी कि जो हमारे एटमी प्रोग्राम की अलामत था, उसी के मॉडल को जला डाला। क्या इनके लिए पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना भाई से शर्मिंदगी था? हाँ, थोड़ी सी ज्यादती तो हुई है, लेकिन हैं तो अपने ही लोग ना। बेटा,
मुजरमों से रियायत बरतने वाली रियासतें कभी पुरअमन नहीं होती। सानिया 9 मई, नेवर अगेन। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बेलारूस के वजीर खारिजा सरगेई एलेनिक ने लाहौर में मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वजीर आज़म ने बेलारूस के साथ वसी बुनियाद ताल्लुकात की ज़रूरत पर जोर देते हुए मईशत, ज़राअत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वजीर खारजा सरगेई एलेनिक ने वजीर आज़म को सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का तहनीती पैगाम पहुँचाते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते का एक अहम मुल्क है और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए काविशें काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह बाहमी तबादलों का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस आइंदा साल सिफारती ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह मनाएंगे। उन्होंने बेलारूस के सदर को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर खारजा सरगेई एलेनिक को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अपनी वजारत से मुतालिक उमूर के बारे में भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की तरक्की ज़रई शोबे की जिद्दत के बगैर मुमकिन नहीं। ज़रई इस्लाहात पर सियासत से हट कर मुस्तकिल बुनियादों पर अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। लाहौर में जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने ज़रई तहकीक के इदारों को दानिस्ता तबाह किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवां साल गंदम की तारीखी पैदावार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हमने गंदम, कपास और कमाद की बेहतरीन इमदादी कीमत से किसान की खुशहाली यकीनी बनाई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि खाद पर सब्सिडी बराह रास्त किसानों तक पहुँचाई जाए और ज़रई ट्यूबवेल्स को मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए अमली इक़दामात शामिल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मेयारी बीज की फराहमी, जदीद मशीनरी, तौसी, खिदमात और ज़रई तहकीक के लिए बजट में फ़ंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल के बावजूद मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल के फ़रोग़ और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में सियालकोट चैम्बर के वफ़द के साथ गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि माजी में ताजिरों और सरमायाकारों के साथ मिलकर मुश्किलात का मुकाबला किया और मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकाला। बजट में कारोबारी बिरादरी की तजावीज़ को अहमियत देंगे। सियालकोट चैम्बर के वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को नए माली साल के वफाकी बजट के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी मुलाकात में मौजूद थे। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी ने शेंटर हाई पावर प्रोजेक्ट समेत मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। एक्निक का इजलास वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वादी नीलम में 48 मेगावाट शेंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई ग्रिड्स की तामीर और स्कर्दू में 26 मेगावाट शिगर तंग हाइड्रो पावर मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान टोबैको कंपनी के वफ़द ने डायरेक्टर एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका की क़यादत में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से मुलाकात की और बजट से मुतालिक तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को यकीन दिलाया कि आइंदा बजट में उनकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मुलाकात में मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। 9 मई के वाक़यात रियासत पर हमला थे। मुलव्विस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। निजी TV को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात ख़राब किए गए। उन्होंने कहा कि PTI ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुद बंद किए। इमरान खान कौम से माफ़ी मांगे। इस वक्त मुल्क के हालात हैं, ये इसमें बहुत बड़ा रोल जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है और ये मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क से बाहर भी है। इसी तरह इन्वेस्टर के ऊपर इसका बहुत असर है, आपकी मार्केट्स के ऊपर बहुत असर है। एक मिसाल कायम हो जानी चाहिए कि ये नहीं रिपीट हो सकता पाकिस्तान। अगर ये कौम से माफ़ी मांगे और ये अपने इसको ओन करें और उसके एश्योर करें कि आइंदा ये कभी ये इनकी पार्टी नहीं करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा ने आइंदा माह सेहत के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया।
دونوں رہنماؤں نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کی سرگرمیوں اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت کی۔ سپریم کورٹ مبینہ آڈیو لیک سے متعلق انکوائری کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں اور بینچ پر اعتراضات کی آئندہ ہفتے سماعت کرے گی۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال کا کہنا تھا کہ ججز پر اعتراضات بینچ کے روبرو اٹھائے جاتے ہیں۔ رجسٹرار آفس ججز پر اعتراضات کے حوالے سے درخواستیں وصول نہیں کرتا، اسی لیے درخواستیں واپس کی گئیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ درخواستوں میں غیر مناسب الفاظ استعمال کیے گئے ہوں۔ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے انکوائری کمیشن نے بطور فریق مقدمے میں جواب جمع کراتے ہوئے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جواب میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس اور ججز آئین کے مطابق اپنے حلف اور ضابطہ اخلاق کے پابند ہیں۔ نئے قانون کے بعد بینچ کی تشکیل 3 رکنی کمیٹی کا اختیار ہے۔ انکوائری کمیشن آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے اپنا موقف پہلے اجلاس میں واضح کر چکا ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کی خوش دامن اور بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے حوالے سے آڈیوز موجود ہیں، اس لیے مناسب نہیں کہ موجودہ بینچ معاملے کی سماعت جاری رکھے۔ جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی آڈیو منظر عام پر آنے کے بعد وہ کمیشن کی تشکیل کے خلاف مفاد عامہ کے تحت عدالت سے کیسے رجوع کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کے متعلق قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے۔ محسن شاہ نواز رانجھا کو کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ خصوصی کمیٹی نے سپریم جوڈیشل کونسل اور اعلیٰ عدلیہ سے متعلق وزارت قانون سے تفصیلی بریفنگ طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ججز سے متعلق ریفرنس پر کارروائی کے بارے میں بھی بریف کیا جائے۔ معاون خصوصی عرفان قادر نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس انتہائی سادہ ہے جسے پیچیدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برطانوی ایجنسی اور پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ریاست پاکستان کا پیسہ ایک کمپنی کے واجبات کی ادائیگی میں مد میں سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، ذمہ داروں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ ایک باہر کے ملک نے آپ کو دیا اور آپ کے اپنے لوگوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان سے چھین لیا اور ان کو بھی دھول جھونک دی کہ وہاں پہ ایک ایگریمنٹ کیا نیشنل کرائم ایجنسی سے اور ان کو یہ شو کیا کہ ہم تو یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کے لیے کو دے رہے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو کہہ دیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے ورنہ تو یہ پیسہ برطانیہ رہتا۔ یہ جو اتنی مہربانی کی گئی اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا، القادر ٹرسٹ۔ پاکستان کی تاریخ تو کیا دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا حجم بدعنوانی کا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیشنل کرائم ایجنسی کے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 3 دن کی توسیع کرتے ہوئے انہیں احتساب عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی نکالنے اور 9 مئی کے واقعات کے بعد درج 6 مقدمات میں 10 دنوں کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی اور عمران خان کو 10 دن میں متعلقہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ عمران خان کی یو ٹرن لینے کی بھیانک تاریخ ہے۔ امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے والا اب امریکہ سے ہی مدد مانگ رہا ہے۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث بلوائیوں سے قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ تفصیل جانتے ہیں صدف افضل سے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ 9 اور 10 مئی کا واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے سکولز، ایمبولینسز اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ خواتین کے حقوق کی بات وہ کر رہے ہیں جن کے جلسوں میں خواتین سے بد اخلاقی معمول ہے۔ یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ ایبسولوٹلی یس میں بدلا ہے، اس پر پوری قوم کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے آزادی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے امریکہ کے خلاف، اب وہ قدموں میں گرے ہوئے ہیں کہ امریکہ میری مدد کرے، اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں جس طرح خواتین کی حرمت کو بطور ہتھیار استعمال کیا، لفظ شرمناک کے کوئی معنی ہے اردو زبان میں تو یہ شرمناک ہے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ کوئی نیا قانون یا عدالتیں قائم نہیں کی جا رہی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث مرد و خواتین کے معاملے پر پنجاب حکومت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جو مرد و خواتین اس بلوے کے ذمہ دار تھے، اس میں شامل تھے،
उन पर कानून का इतलाक होगा। जो नहीं शामिल थे उन्हें आइंदा आने वाले दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारा फोकस बतौर हुकूमत के यही है कि 2018 के इंतखाबात में जिसमें बदतरीन धांधली हुई, 2023 के इंतखाबात में ये नहीं होगा। जो हमवार मैदान हमें लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों को प्रोवाइड करना है, वो इंशाल्लाह लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए दिन रात कोशां हैं। सी पैक के मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। बिजली के बिलों को कम करने के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जनाज़ बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी मामलात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मौजूद मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाक फौज की काविशों की भी तारीफ की। क़ब्ल अज़ीं GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक निकोलस यार्डले ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा किया। उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनाज़िर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत ने 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हुए इन वाक़यात को कौमी और फौजी बका के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। एप्सोस क्विक कौमी पोल के नताइज के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त इक़दामात करने का मुतालबा किया है। 10 में से 9 पाकिस्तानियों ने इन वाक़यात को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। हर 2 में से एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की क़यादत और उनके कारकुनान से मज़म्मत और मुआफ़ी का मुतालबा करते हैं। पोल के मुताबिक शरपसंद वाक़यात की मज़म्मत पाकिस्तानियों की अपने वतन से वफादारी की ज़मानत है। पोल के नताइज से ये ज़ाहिर होता है कि कौम 9 मई के घिनौने वाक़यात की भरपूर मज़म्मत के साथ ज़िम्मेदारों शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जिन्ना हाउस के मज़म्मत कर रहे हैं। शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जिन्ना हाउस में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की क़यादत में 20 रुकनी वफ़द ने लाहौर में जिन्ना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से कायद आज़म की इस तारीखी यादगार को तहबाला करने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि इमरान खान ने पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपागेंडा करने की मज़मूम मुहिम शुरू कर रखी है, मगर इनको मुँह की खानी पड़ेगी क्योंकि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जैसे कई ऐसे नालायक खान, झूठे खान और ऐसे खान जो काम के साथ, मैं ये समझता हूँ उनके जज्बात के साथ खेलने वाले, हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की गैरत पे कुर्बान करने होंगे। इमरान खान के जो फ्रॉड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो काम के सामने जो दूसरा चेहरा था, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान के साथ जो फौजी कवानीन है उसके तहत निपटा जाए और ऐसे जो हमारी सियासत के अंदर जो ऐसे किरदार है ताकि आइंदा के लिए वो मिसाल बने। ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन की सरबराही में 30 से जायद पाक फौज के रिटायर अफसरान ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि 9 मई के दिल खराश वाक़यात पर पाक फौज के शोहदा के लवाहिकीन और गाजी सदमे से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि शरपसंदों ने कौमी अमलाक और फौजी तनसीबात के साथ जो किया, कोई मुहिब वतन ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत सब कुछ किया गया है। इतने बड़े घर को, बिल्डिंग को इस तरीके से जलाना कि कोई चीज़ यहाँ पर बचे ही मत। ये कोई नॉर्मल छोटी सी आग से इस तरह नहीं होता, वो केमिकल यूज़ किया गया है। एक जगह मैंने टायर देखे हैं जो यहाँ पर जला के फेंके गए हैं और जिस तरीके से गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया, पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स, मतलब यकीन किया गया कि इस पूरी बिल्डिंग में कुछ ना बचे। और इस तरह का काम करके हमने इन लोगों ने क्या पैगाम दुनिया को दिया वो हम सब पे वाज़े है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और असातिज़ा ने भी जिन्ना हाउस का दौरा किया और घिनौनी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा ने कहा कि पाक फौज और अवाम पाकिस्तान के परचम तले मुत्तहिद हैं और कोई भी इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 लोगों की हलाकत का इल्ज़ाम सिर्फ प्रोपेगेंडा है। तहरीक इंसाफ को चाहिए अगर इसमें हकीकत है तो उन लोगों के नाम फराहम करे। लाहौर में सुंदस फाउंडेशन के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जेलों में किसी पर भी तशद्दुद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सिर्फ 11 ख़वातीन गिरफ्तार हैं। हम लोग भी माओ बहनों वाले हैं। जैसे इल्ज़ामात लगाए गए ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर वो 25 लोग हलाक हुए तो उनकी लिस्ट भी होगी, नाम भी होंगे, उनके जनाजे भी हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं के रहायशी भी होंगे। सिर्फ उसके नाम दे दें ताकि हमारी भी नॉलेज में आ जाए। या फिर हम इतने हमारे सिस्टम इतने कमज़ोर हैं कि लोग मर जाएं और हमें पता ना चले। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वो जो रोज़ कह रहे हैं कि जी 25 लोग हलाक हुए, 25 लोग हलाक हुए, इंटरनेशनल मीडिया को भी कह रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उन 25 लोगों के नाम ज़रूर हमें दे दें। टोटल 11 ख़वातीन हैं हमारे पास। हम भी माओ बहनों वाले हैं। सिर्फ हम कल भी परसों भी, क्योंकि एक तो हमारा अपना जो भी सिस्टम है, पुलिस का सिस्टम है, जेल का सिस्टम है, उसके बावजूद जब इतना ज़्यादा हुआ कि यार कोई चीज़ अल्लाह ना करे ऐसी ना हो ना गई हो या कुछ हो, हमने 4 दफ़ा चेक किया। उन ख़वातीन को हम मिला नहीं सकते, वरना मेरा दिल है कि आपको मिला के उनसे खुद पूछवा लें कि एक खातून जो वहाँ से निकली हैं उसने खुद ट्वीट किया, डिटेल बताइए। हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो कौन है कौन नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता है। लेकिन आप इस तरीके से अपनी माओ बहनों पे इल्ज़ाम लगा देना, थोड़ी सी तो कहीं ना कहीं हमें हया करनी चाहिए। कि वज़ीर आला ने कहा कि सुंदस फाउंडेशन का थैलेसीमिया सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट है। थैलेसीमिया के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली से इस पर काबू पाया जा सकता है। थैलेसीमिया के खिलाफ काम करने वाले स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैट्रिक से थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग की कानून साजी बहुत अहमियत रखती है। इस बारे में गवर्नर पंजाब से बात करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहुत सारे मुल्कों ने इस बीमारी का खात्मा यकीनी बनाया है, हमें भी मिलकर इस बीमारी का खात्मा करना होगा। जनाज़िर आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजलात से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने लाहौर में मुलाकात की और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद गरेजा, सरदार शमशेर मज़ारी, सैयद कायम अली शमसी, सरदार अल्लाह बख्श लगारी, पीर जाफ़र मुजम्मिल शाह, मियाँ अलमदार कुरैशी, अब्दुल गफूर आराई, यासिर अता कुरैशी और दीगर रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का खैर मकदम करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में अवाम के जमहूरी, सियासी और माशी हुकूक के लिए जद्दोजहद की है और ये सफ़र जारी रहेगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। बदकिस्मती से कुछ लोग मुल्की सालमियत को अपनी ज़ाती जिद और अना की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। लाहौर में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाक फौज उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मरकज़ है। हम मुल्की इदारों को कमज़ोर करने और इंतशार पैदा करने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कमिश्नर मालाकंड, चेयरमैन बार एसोसिएशन लोअर दीर और अंजुमन ताजरान ने फ्रंटियर कोर पब्लिक स्कूल तिमरगरा का दौरा किया। उन्होंने असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की और 9 मई को स्कूल जलाए जाने के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की। वफ़द ने शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालिबा किया। तफसील जानेंगे अब्दुल्ला शाद से। 9 मई यौम स्याह पर एक गिरोह के बलवाइयों ने अपनी शरपसंदी से दुश्मन को भी मात दे दी। FC पब्लिक स्कूल तिमरगरा के असातिज़ा, तलबा और तालिबात का कहना है कि हुकूमत इस मजमूम कार्रवाई में मुलविस अनासर को कड़ी सजा दे। ऐसे अनासर बिलखसूस लड़कियों की तालीम के खिलाफ हैं। या मैं ये सोचती हूँ कि क्या इन लोगों के भाई बहन नहीं है, क्या वो तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं? इनको ये सब करते हुए जरा सा भी एहसास नहीं आया। अब तो लोगों और बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहे हो। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी शख्स हमारी स्कूल की तरफ इस तरह आंख उठा के भी न देखे। ये बहुत खूबसूरत स्कूल था। इस इलाके सारे मालाकंड डिवीजन में ये एक प्रेस्टिजियस इदारा था। कमिश्नर मालाकंड, अंजुमन ताजरान लोअर दीर और चेयरमैन बार एसोसिएशन लोअर दीर ने FC पब्लिक स्कूल तिमरगरा का दौरा किया। स्कूल पहुंचने पर इंतजामिया की जानिब से 9 और 10 मई के वाकयात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अफसरान ने शरपसंदी के वाकयात के दौरान होने वाले नुकसान की भरपूर मजम्मत की। इसमें हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन लोग थे। FC स्कूल की क्या कसूर थी? इस 1800 बच्चों
कि क्या कसूर थी, उनका मुस्तकबल दांव पे लगाकर तारीख कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के नुमाइंदगान चेयरमैन ताजर इत्तेहाद लोएदीर ने कहा कि स्कूल की तबाह हाल इमारत देखकर दिली अफसोस हुआ। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इमारत की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल की जाए ताकि बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकें। 9 मई यौम सियाह की पुरतशद्दद कार्रवाइयों में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। इन कार्रवाइयों में मुलव्विस अनासर जल्द अंजाम को पहुँचेंगे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहदाए पाक फौज के लवाहिकीन अपने पैगामात में शहदा की बेलौस कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहते हैं कि हमारे बच्चों ने इस मिट्टी की आबियारी अपने लहू से की है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। 9 मई हमारी कौमी तारीख का स्याह दिन है। इस दिन एक ग्रोह ने अपनी शरपसंदी से दुश्मन को भी पीछे छोड़ दिया और कौम को शर्मसार किया। यौम स्याह पर बलवाइयों ने न सिर्फ हसास अमलाक को निशाना बनाया बल्कि शहदा की तकरीम भी मलहूज़े खातिर न रखी। जिंदा कौमें अपने शहदा को हमेशा याद रखती हैं। इसी हवाले से 25 मई का दिन यौम तकरीम शहदा के तौर पर मनाया गया और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए अवाम बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकली। सोशल मीडिया पर वायरल शहीद की बेटी की अपने बाबा से शरपसंदों की शिकायत पर मबनी नज़म ने भी अवाम को अश्कबार कर दिया। मैं अपने बाबा से सब कहूँगी, ये नफरतों में तुम्हारी शिद्दत, न देखी तुमने वतन की हुर्मत, कहाँ गई वो तुम्हारी गैरत, तुम्हारे शोलों में मैं जलूंगी, मैं अपने बाबा से सब कहूँगी। कैप्टन जवाद अकरम शहीद की वालदा ने कहा, मेरे बच्चों ने इस मिट्टी की आबियारी अपने लहू से की है। जिन लोगों ने भी हमारे देखे ना फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया, हमारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, फौजी अमलाक को, हम इस चीज़ का इतना दुख है कि जिसकी कोई हद नहीं। कम से कम हमारे शहीद बच्चों के खून की लाज रख लेते। सिपाही इमरान शहीद की बेटी का कहना है कि मेरे बाबा ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ये शहीद होते हैं, हम यतीम होते हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए होते हैं ना। मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगी? वो मैं उनको कहूँगी कि आप इन लोगों के लिए जान दिए जो लोग आप लोगों की तस्वीरों को जलाते हैं। पाकिस्तान का हर मकतबा फिक्र अपने शोहदा की न सिर्फ इज्जत और तकरीम करता है बल्कि इनकी बेलौस कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश करता है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वतन के लिए जाम शहादत नोश करने वाले सपूतों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि पूरी कौम अपने शहदा की हमेशा ममनून रहेगी। सदर मुमलिकत ने बाजौड़ और दत्ता खेल में शहीद होने वाले सिपाही शफीकुर रहमान, सिपाही जवाद खान और सईदुल्लाह के लवाहिकीन को टेलीफोन किया और शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दक़ा खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मकामी आबादी ने दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई को सराहा और पाक फौज के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की तरफ से इंसदादे पोलियो टीम पर हमला नाकाम बना दिया। इंसदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में जिला मर्दान के रिहायशी 25 साला सिपाही साकिबुर रहमान ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क में दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की शहादतें हमारे इस अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 9 और 10 मई जैसे वाक़यात के पीछे सिर्फ पाकिस्तान दुश्मन ही हो सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। यहाँ का गेट आपके पार्टी के वर्करों ने 9,000 रुपये में बेचा। आज जब इन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पर पंखों तक के पर निकाल के ले गए, बाथरूम के जो है नल्स ले गए हैं, कुर्सियाँ, साउंड सिस्टम, जो चीज़ें उनके हाथ में आई वो ले गए हैं। यहाँ पर आप देखें कि गाड़ियों के को आग लगाने से पहले इनके इंजन खोल के ले गए। एक पूरे मंसूबे के तहत
जो चीज़ें ये निकाल सकते तो निकाली और उसके बाद उनको आग लगाकर, और ये वो बहाना बनाकर कि आग में सब कुछ जल गए हैं, ये करके ये मुल्क दुश्मनी कर सकते हैं, मुल्क के खैरख्वाह नहीं कर सकते हैं। हम हर सियासी जमात के पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत करते हैं। आज वही इमरान खान अपने वर्करों को नहीं करता। मैं आज उन पॉलिटिकल वर्कर्स जो पीटीआई के हैं, जो जेलों में हैं, थानों में हैं, और जो इनकी बातों में आकर जिन्होंने सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाए, आज मैं उनसे ये कहता हूं कि आज आप देखें कि जिसको पैरोकार आप थे, जिसके आवाज़ पे आप चल रहे थे, आज उन्होंने आपको ओन करने से इनकार कर दिया। मईशत और तवानाई के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर क्यानी ने कहा है कि रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर लेक्चर देना ढिठाई और हठधर्मी की इंतहा है। उन्होंने कहा कि हम्माद अजहर इमरान खान की नाम नेहाद माशी टीम का हिस्सा थे, जिसने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठा दिया और जानबूझकर मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। बिलाल अजहर क्यानी ने कहा कि पीटीआई दौर में 2 करोड़ से जायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे गए, 60 लाख से जायद बेरोजगार हुए। पीटीआई के 4 साल में औसत मालियाती खसारा 3,871 अरब रुपए था, जबकि माली साल 2022 में रिकॉर्ड खसारा 5,260 अरब रुपए था। मुवाजना करें तो 2013 से 2018 के मुस्लिम लीग नून के दौर में औसत सालाना मालियाती खसारा सिर्फ 1,664 अरब रुपए था। पीटीआई ने 4 साल मुल्की कर्जों में 78% इजाफा किया। तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लेने के बावजूद मुल्क में पीटीआई एक नया तरक्याती मंसूबा नहीं दिखा सकती। उन्होंने कहा कि पीटीआई के दौर में इमरान खान ने 4 वज़राए ख़जाना लगाए और चारों ही नाकाम हुए। इन 4 नाकाम वज़राए ख़जाना में भी हम्माद अजहर नाकाम तरीन साबित हुए, जिन्हें 2 हफ्ते बाद ही नाअहली और नालायकी पर ओहदे से बर्खास्त किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि इदारों पर हमलावर होना इमरान खान का वतीरा है। उनका कहना है कि अवाम सोचने पर मजबूर हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद लाडले के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान ने इंतशार और जलाओ घेराव की सियासत को फरोग दिया। 9 मई को शरपसंद जत्थों ने हसास तंसीबात पर हमले किए। लाडले की और इन लोगों की, इनके साथ जत्थों की जो तरबियत की गई थी, उस तरबियत का नतीजा पाकिस्तान के तमाम अदारों की तोड़फोड़ की वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा। किस तरह से बेदर्दी से उनकी यादगारें, उनके ऊपर तोड़फोड़ की गई, कोर कमांडर हाउस पे हमलावर किया गया, और तकरीबन पूरे पंजाब में और केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी कराची में भी, जहां पर उनका बस चला था, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जत्थों की शक्ल में ये हमलावर हुए। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान के दौर में हमारी क़यादत ने झूठे मुकदमात में जेलें काटी। एक अदालती लाडला, उसको हमने हर चीज का एनओसी दे दिया है कि वो जो चाहे करे, जिस चाहे इमारत पर हमलावर हो, जिस चाहे शख्सियत की पगड़ी उछाले, उस बंदे को हम कोई अदालत, कोई भी अदारा हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अदालतों का लाडला है। काश ये सहूलत मुस्लिम लीग नून के लीडरों को भी मुयस्सर होती 2018 से लेकर 2022 तक। काश ये सहूलत मियां नवाज शरीफ को भी मुयस्सर होती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना होगा। इंसाफ का दोहरा मयार ज्यादा देर नहीं चल सकता। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इमरान खान और इसके हवारियों के यहाँ इदारों और मुल्क की कोई अहमियत नहीं है। सियासत की आड़ में तशद्दुद करने वाली जमात में फ़र्क करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए। 9 मई खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। प्लान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ड्यूटियां लगाने वाला इमरान खान, और अगर इसी को इसमें सजा नहीं होगी तो जितने मर्जी लोगों को सजा दे ली जाए, इस केस पर सवाल उठते रहेंगे। ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये स्टोरी है, ये इसकी बेशर्मी की इंतहा है। इसमें यह कहता है कि जो कुछ हुआ है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने और पीटीआई के कारकुनों ने किया है। बेशर्म आदमी, पहले लोगों को इस्तेमाल करते हो, यूज, अब्यूज और डिस्पोज ऑफ की तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे गुजरी है। तुम ना के अपने कारकुनों से हमदर्दी करो,
लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान के दुश्मनों ने 71 में मुल्क की सालमियत पर वार किया, वैसा ही 9 मई को किया गया। रावलपिंडी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के जलाओ घिराव में मुलव्विस शरपसंद अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। 9 मई को जो किया गया पाकिस्तान की तारीख में, इससे ज्यादा स्याह दिन नहीं आया। एक वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तोड़ा गया, और एक ये दिन है जिस दिन पाकिस्तान जलाया गया। कोशिश की गई कि पाकिस्तान की कौम और फौज के दरमियान तकसीम पैदा की जाए, पाकिस्तानी कौम और फौज को लड़ा दिया जाए। मैं सिपा सलार कौम को सलाम पेश करता हूं। अगर फौज जवाब देती, इन चंद बलवाइयों को कोई मसला नहीं था। और पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। मजीद रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। डेरा इस्माइल खान में पार्टी रहनुमा मखदूम ज़ादा अली रजा ने साबिक तहसील नाजिम जहांजेब अकबर खान और दीगर साथियों के हमरा तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा कि कौमी इदारों की कमज़ोर करने की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। DI खान से नौजवान क़यादत ने 9 मई के नागवार वाक़यात की मजम्मत करते हुए PTI छोड़ने का ऐलान किया। ज़िला नायब सदर इरफान खान कामरानी, साबिक नाजिम जाजिब जावेद और दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं होगी। बहावल नगर से साबिक रुकन असम्बली सैयद मोहम्मद असगर शाह ने भी इमरान खान से राहें जुदा कर लीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ मजीद नहीं चल सकता। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पंजाबी सिख संगत पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा है कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। हमारे बहादुर फौजी जवानों की कुर्बानियों की वजह से हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सिख बिरादरी हमेशा अपनी फौज के साथ खड़ी होगी। अपने वीडियो बयान में सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए जन्नत से कम नहीं है। हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है जो मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने लीडर समिट से खिताब करते हुए कहा कि CPEC पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। मंसूबे में 3 साल के अरसे में बड़ी सरमायाकारी हुई। उन्होंने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा और पाकिस्तान का विजन 2025 चीन और जनूबी एशियाई मुल्कों को मिलाने के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुख्तसर वक्त में थर कोल से 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल की है। विंड और सोलर के बड़े मंसूबे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने माजी में तवानाई बहरान और दहशतगर्दी पर काबू पाया, आइंदा भी मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। जिनाज़िन खबरनामे में शामिल मजीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। क्या देख रहे हो जानी? देख रहा हूँ कि नफरत की आग ने क्या कुछ जला डाला। इग्नोर कर जानी, एहतजाज में तो ऐसा होता ही है। कम ऑन यार, क्या बात कर रहे हो? कहाँ लोग मरीजों को निकाल कर एम्बुलेंस जलाते हैं, अपने शोधा की यादगारों को कौन पत्थर मारता है? हमारे मुहाफिजों, हमारे स्कूलों और GHQ पर तो दहशतगर्द हमलावर थे। जिना हाउस तक को भी नहीं बख्शा इन्होंने, और तू कहता है कि इग्नोर करो। जब क़यादत को दीवार से लगाया जाएगा तो रिएक्शन तो आएगा ना। जो खुदगर्ज हो वो क़यादत नहीं होती। भुट्टो अगर खुदगर्ज होता तो कभी एटमी प्रोग्राम की बुनियाद न रखता। नवाज शरीफ अगर खुदगर्ज होता तो कभी एटमी तजर्बात न करता। और आज इन्होंने क्या किया? वो चाकी कि जो हमारे एटमी प्रोग्राम की अलामत था, उसी के मॉडल को जला डाला। क्या इनके लिए पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना भाई से शर्मिंदगी था? हाँ, थोड़ी सी ज्यादती तो हुई है, लेकिन हैं तो अपने ही लोग ना। बेटा, मुजरिमों से रियायत बरतने वाली रियासतें कभी पुरअमन नहीं होती। सानिया 9 मई, नेवर अगेन। खबरनामे में बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां छापे और पकड़ धकड़ की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय फोर्सेज और बदनामे ज़माना तहकीकाती इदारों की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
NIA نے بڈگام، سری نگر، اسلام آباد، راجوری، پونچھ اور کشتواڑ کے اضلاع میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع پونچھ کے علاقے کرمارا میں محاصرے اور پرتشدد کارروائی کے دوران فائرنگ سے ایک شہری محمد فاروق کو زخمی کر دیا اور اس کے 2 بھائی بھی گرفتار کر لیے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر اور شورش زدہ بھارتی ریاست منی پور میں راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ہندتوا بالادستی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ BJP حکومت منظم طریقے سے بھارت کو ایک ہندو راشٹر میں تبدیل کر رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں اور منی پور میں عیسائیوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں میڈیا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں شاہین صفدر۔ دور حاضر میں میڈیا کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ جدید دور میں میڈیا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیبسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں میڈیا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد نوجوان نسل کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کی اہمیت اور غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہی حاصل کرنا تھا۔ آج کی جو پرفارمنس تھی، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو کسی بھی انٹرنیشنل پرفارمنس سے یہ کم نہیں ہے۔ یہاں کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے سب یونیورسٹی سے، اسی لیے میں نے یہ والی یونیورسٹی چوز کی کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ہر طرح سے گروم کیا جاتا ہے، آپ کی سکلز کو۔ کافی ساری چیزیں ہیں ہینڈ میڈ ہیں، وہ ہم سیل کرتے ہیں اور اچھا ہماری چیزوں کو بھی پروموشن مل جاتی ہے اور سب کو چیزیں پسند آتی ہیں۔ میڈیا فیسٹیول کے دوران طلبہ و طالبات نے ڈرامہ اور صوفیانہ کلام پیش کیا، جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ فیسٹیول میں مختلف سٹالز لگائے گئے تھے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے، جوڑی اور مختلف اشیاء کو دکھایا گیا۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے طلبہ و طالبات کو تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ایشیا کپ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے PCB حکام کے ہمراہ لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ کیا۔ چیئرمین ICC گریگ بارکلی اور چیف ایگزیکٹو جیف ایلرڈائس نے کیمروں سے سرویلنس کا جائزہ لیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر محمد کامران خان نے ایشیا کپ کے لیے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ چیئرمین ICC نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی لاہور کا انفراسٹرکچر دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آ کر اچھا محسوس کر رہا ہوں، کرکٹ کے لیے پاکستانیوں کا جذبہ دیدنی ہے۔ ناظرین، عمان میں جاری جونیئر ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل مقابلے آج کھیلے جا رہے ہیں۔ سلالہ میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے جنوبی کوریا کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان اور ملائیشیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ پول مرحلے میں پاکستان اور ملائیشیا کی ٹیمیں ناقابل شکست رہیں۔ پاکستان نے 3 میچ جیتے، 1 میچ برابر رہا، جبکہ ملائیشیا نے اپنے 4 میچز میں کامیابی سمیٹی۔ فاتح ٹیم کا کل فائنل میں بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ دنیا کے تیز ترین پنچ کرنے والے پاکستانی باکسرز کے گینیز ورلڈ ریکارڈ منظور ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان سے تعلق رکھنے والے باکسرز یونس اور احمد سفیر 1 منٹ میں 1 کلو وزن کے ساتھ سب سے زیادہ پنچز کے ریکارڈ قائم کرنے میں کامیاب رہے، جن کی گینیز ورلڈ ریکارڈ نے منظوری دے دی ہے۔ یونس محسود نے 1 منٹ میں ایک ہاتھ سے 1 کلو وزن کے ساتھ 161 پنچ کر کے راشد نسیم کا 152 پنچز کا ریکارڈ توڑا، جبکہ احمد سفیر نے 1 منٹ میں دونوں ہاتھوں سے 1 کلو وزن کے ساتھ 321 پنچ کر کے اپنا ہی 301 پنچز کا ریکارڈ توڑا۔ پاکستان کپ ویمنز کرکٹ ٹورنامنٹ کے 5ویں میچ میں PCB چیلنجرز نے PCB بلاسٹرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کراچی میں کھیلے گئے میچ میں بلاسٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 45 اوورز میں 190 رن سکور کیے۔ منیبہ علی نے 50 اور ارم جاوید نے 49 رنز کی اننگز کھیلی۔ سیدہ معصومہ زہرا نے 4 اور سعدیہ اقبال نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں PCB چیلنجرز نے مطلوبہ ہدف 41.2 اوورز میں 5 وکٹوں پر حاصل کیا۔
السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، سندھ اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ لسبیلا میں 33 ملی میٹر، مری 27، سیالکوٹ 21، نارووال 18، لاہور 14، راولکوٹ 24، گڑھی دوپٹہ 16، مظفرآباد 16 اور مالم جبہ میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اوکاڑا، بہاول نگر، جہلم، گجرات، اسلام آباد، راولپنڈی، بھکر، گجراوالا، حافظ آباد، سید الشریف، روہڑی، سکھر، ٹنڈوجام اور خیرپور میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں کہ دادو میں 42، شہید بے نظیر آباد 41، ملتان 34، فیصل آباد 29 جبکہ گلگت میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: اسلام آباد 23، لاہور 25، کراچی 35، پشاور 28 جبکہ کوئٹہ میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔